This generally happens with people who do suicides and all. फिर मैंने दे दिया, अब उस चीज़ों को अरे मिस दिस इज द अल्टीमेट गोल, पैसा मिल जाएगा काम। Hello everyone. Today we have Priyanka ma'am with us. She is a healer, tarot card reader, therapist, and also Access Consciousness Bar facilitator. We are happy to introduce her in our podcast with her gift of insight and intuition. Welcome ma'am. थैंक यू सो मच। So ma'am, to start with, आप अपने बारे में बताइए, आप इस फील्ड को आपने कैसे चूज किया? What inspired you? So basically myself, Priyanka Jadwani. I have been in this field from last 8 years. Basically, it started from our depressing journey. Okay. Then it converted into helping people really with what they are dealing. Because when I was going through that phase of depression, I was like, I needed a help. I really needed the help to, overcome this for my daughter, for my family. So, initially I started for my own self. मैंने खुद के लिए ये चीज़ learn करना start की थी. But throughout the journey and while I was doing that, my teachers told me like, you can be the inspiration for other people to come out from these phases of depression. So I was like, why not? पहले तो हमें भी लगता है मेरी जर्नी क्या इंस्पायर करेगी लोगों को, बट व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू एंड आई वाज लुकिंग आउट फॉर अदर पीपल्स जर्नी, लाइक हाउ दे केम आउट, व्हाट वेयर दे गोइंग थ्रू दैट टाइम. So I was like, okay, surely I would like to help because this was an amazing help for my own self. मुझे जितना help मिला, मुझे ही इतना जो contribute किया था, I was like definitely I can be that inspiration and model for the other people so that they also can come out from their depression and can live happily. So you yourself got inspired. आपको खुद के ही तकलीफों से आपने एक नया रास्ता निकाला to help each and everyone. Definitely, yes. जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, ये प्रॉब्लम ही हमारे लिए एक सोर्स होता है. सो दैट इट्स लाइक आप इसे दो चीज़ों से ले सकते हैं. उस प्रॉब्लम में घुस के अपने आप को एक विक्टिम बना के फॉरएवर उसी में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अपने आप को, या उससे निकल के दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बन सकते हैं कि इफ आई कैन, यू कैन ऑल्सो. देयर इज नथिंग कि इम्पॉसिबल है या कोई रास्ता नहीं है. देयर इज ऑलवेज अ वे, देयर ऑलवेज समथिंग so that you can live happy life. So nice. So you are dealing with healing. मतलब आप लोगों को heal करते हो. So what? Healing, Okay. yeah. So what exactly it is, and what are the techniques involved? See, healing basically is जब हमें पेन होता है, जब हमें कोई तकलीफ होती है, so it's not only the outside body going through that pain or suffering. Healing is like आप internally उस चीज़ों से कैसे solve कर सकते हो. It's a spiritual, it's a emotional and it's physical too. Okay. So हम ये तीनों पार्ट को कवर करते हैं so that you are totally and completely out of the situation. I'm not denying कि going to a doctor will not help you, but sometimes some pains are inside your head. आपके दिमाग से, आपके इमोशनल लेवल से वो पेन आपको स्टार्ट हुआ है. सो डीलिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो हीलिंग में हम उन चीज़ों को डील करते हैं कि आपका ये जड़, ये शुरू कहाँ से हुआ. What really causes you the knee pain, the back pain? इसका प्रॉब्लम कहाँ से सर? Where you started feeling unworthy? See, knee pain की one of the reason is कि आप कुछ चीज़ स्टैंड ही नहीं कर पा रहे हो, कुछ चीज़ बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हो, and you are just dealing with that stuff unknowingly. आपने अपने आप को बताया भी नहीं, कुछ चीज़ें ना यार मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही. But you have to keep your mouth shut or yourself quiet कि मैं सबके सामने नहीं बता सकती. That धीरे 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 converts into a knee pain. Converts into the foot pain. Your feeling of unworthy. कितने बार अपने आप को वर्थ ही नहीं देते हैं, यार मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, वो कर सकती. बोलने में तो अच्छा लगता है, but that again your body is converting that into a pain. So back pain generally starts from that. Okay. Feeling of unworthiness and वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है. फिर हम कंपेयर करने लगते हैं लोगों से अपने आप को, फिर हम अपने आप को और जस्टिफिकेशन देने लगते हैं कि नहीं मैं नहीं हूँ इतनी अच्छी, मैं इतना वर्थ है ही नहीं सच में भी. So that also converts into the pain into the body. So ये कुछ reasons हैं मैं बता रही हूँ. When we talk to the people, we actually come to the know कि ये start कहाँ से हुआ है. So तो क्या ऐसे भी होता है जैसे कोई पर्सन आपको बार बार बोल रहा है, लाइक
कई बार होता है कोई आपको बहुत बार बोल रहा है तुम तो ये नहीं कर सकते, तुम इसके लायक नहीं हो, तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें भी हमारे बॉडी पेन का कॉज़ हो सकता है? Yeah, this is first of all, this is the gaslight video, what you're talking. Gaslight is like, making you believe what you are not. आपको मैं बार-बार ये बताकर बिलीव करवाना चाह रही हूँ कि आप ये हो, बट यू आर नॉट रियली दैट पर्सन, ठीक है? आप तो चिड़चिड़े हो, आप तो ऐसे हो, गुस्से वाले हो, आप तो ऐसे लाइक आपको एक लेबल दे के मैं आपको बिलीव करवा रही हूँ कि आप वो पर्सन हो। नाउ आई कंटिन्यूअसली लिसनिंग टू दोज थिंग्स, आप अपने अंदर से चीज़ें मानने लग जाते हैं, बट यू आर नॉट एक्चुअली, एंड दैट्स अ फाइट इनसाइड गोइंग ऑन कि आप मुझे एक चीज़ बोल रहे हो और मैं वो हूँ नहीं, और मैं इस चीज़ को बोल भी नहीं पाऊँगी बिकॉज़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दोज़ थिंग्स कि ये सही नहीं है। आप बस अननोइंगली इसे एब्ज़ॉर्ब करते जा रहे हो, एंड दैट्स गेटिंग स्टोर्ड इन सम और द अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, बट चक्रास आर गेटिंग इफेक्टेड विद दोज़ थिंग्स। सो जहाँ-जहाँ ये ब्लॉकेज हो रहा है, वहाँ-वहाँ वो पेन स्टार्ट होने लग जाती है। ओके। एंड हाउ डू यू डील विद इट? मतलब क्या टेक्निक्स आप यूज़ करते There are many techniques, there are thousands of healing modalities available, there are thousands of counseling people available. So, मैं कुछ examples दे सकते हैं, but I'll say, go to those healing modalities जो आपसे connect हो सकती है. So, one of those are access consciousness. ओके। One of them is NLP, Reiki होती है. There is Lahochi, one Korean healing technique. There is Aptitudian one, again a German healing technique. So techniques की तो मैं बोलूँ तो there are n number of techniques for this healing thing. But I would definitely say जो आप जिससे connect कर पा रही हैं, जहाँ आपको एक मिल रहा है कि meditation is also one of the technique of healing. So आप जहाँ से आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे लिए work कर रहा है, this is something I can do, this is something this is not I'm enjoying. सो हीलिंग प्रोसेस जो होना चाहिए आपके लिए काम नहीं होना चाहिए। अगर काम हुआ ना तो आप फिर भागने लगोगे इससे, अरे यार मुझे 1 घंटा ये काम करना पड़ेगा, मुझे 1 घंटा ये सब करना पड़ेगा, तो वो एक काम के जैसा हो गया, तो आपको लगेगा कि दिस इज नॉट वर्किंग। अफर्मेशन इज ऑल्सो सम वन ऑफ द टेक्निक, स्विच वर्ड्स, जो आपको मज़ा आ रहा है करने में, जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो, जिससे आपको लग रहा है हाँ ये चीज़ जो है ना मुझे अच्छी लग रही है, सो यू कैन गो विद दैट टेक्निक, कनेक्टिंग विथ योर सेल्फ। Which one is your favorite? मतलब आप कौन सा ज़्यादा प्रेफर करते So my thing is with access consciousness. हो? ओके। What access consciousness is do is ये आपको empower करता है कि like see there are phases in the journey, we only know what we are going through. अगर मैं किसी और के पास गई तो they'll just tell me through their learning and their उन्होंने जो सीखा समझा या उनके अकॉर्डिंग जो सही उन्हें लग रहा है, but that might not resonate with myself, like मेरी जर्नी से तो ये कनेक्ट कर ही नहीं पा रहे। So what access consciousness do is they ask question, they ask n number of questions for you to understand कि आप कहाँ stuck हो, आप कहाँ पर चीज़ें हैं जो आपके लिए वर्क नहीं कर सकती, और आप क्या टूल्स ऐसे यूज़ कर सकते हो जो जिससे आप you can change your life, you can change your area of depressing thoughts, pain, whatever you are going through. So and then they also give you the tools at the moment. It's like अभी मुझे गुस्सा आया, अब मैं मेडिटेट करने तो ऑब्वियसली नहीं बैठ सकती, दे विल गिव यू द टूल्स कि आप उस मोमेंट दैट मोमेंट कैसे यूज़ करो और अपनी एनर्जी शिफ्ट कर लो। ओके। सो दैट इज़ व्हाट वी नीड बेसिकली। जब हम सिचुएशन में फंसे हैं तो हमें उस टाइम एनर्जी शिफ्ट करना है, सो दैट वी आर नॉर्मल एंड अगेन मुझे लोगों की बात अफेक्ट नहीं कर रही। वन ऑफ द टूल्स विच आई विल एक्सप्लेन राइट नाउ इज इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ये एक दिलचस्प नज़रिया है लोगों का, वेयर वी आर नॉट जजिंग द पीपल, वेयर वी आर नॉट जजिंग उन्होंने क्या कहा, क्या बोला। अब जैसे आपने मुझे कुछ बोल दिया, आप अच्छे नहीं दिख रहे हो, एंड मगर मेरे पास ये टूल्स नहीं है तो आई बी लाइक अरे यार मैं तो अच्छी नहीं दिख रही हूँ ना, इमीडिएटली माई कॉन्फिडेंस विल गेट लो, इमीडिएटली आई स्टार्ट लुकिंग आफ्टर माई सेल्फ कि मैं कैसे अपने आप को ठीक करूँ और लुक गुड। सो ये एक नज़रिया है आपका। Maybe wearing such clothes or wearing such thing is not your cup of tea. So आपने बोल दिया कि आप अच्छे नहीं दिख रहे हो। So अगर हम इसे सिर्फ एक नज़रिया देख के चलें तो हमें चीज़ें इफेक्ट नहीं पड़ेगी, मतलब लगेगी नहीं इतना ज़्यादा। और अगर मैंने आपका ये बाय कर लिया पॉइंट ऑफ व्यू ही है ना, इट्स जस्ट अ थॉट यू हैव गिवन मी, मैंने ले लिया, तो थ्रू आउट दिस प्रोसेस, थ्रू आउट द इंटरव्यू और वेर एवर आई एम, आई बी वेरी कॉन्शियस ऑफ माई सेल्फ। ओके। सो वो एक्सेस कॉन्शियसनेस में हमें ये सारे टूल्स दिए जाते हैं कि जब आप उस सिचुएशन में हो आप कैसे डील करो, कैसे उनसे बाहर निकलो और कैसे अपने आप को समझो। दिस इज एवरीथिंग, एवरी पावर
और जितनी इस यूनिवर्स में चीज़ें हैं, मोडालिटी आप सब जानते हो। हाउ दिस यूनिवर्स इज मेड, द सेम पार्टिकल्स हम भी बने हुए हैं, बट हमें उन चीज़ों को एक्नॉलेज करना नहीं सिखाया है। हमें उनको बताया नहीं है कि हमें जो ये पावर है हम उनको समझ सकते हैं और उनको ला सकते हैं बाहर। So they basically make you the hero. So that's what I like about this modality. यस, ऑफ कोर्स, मतलब खुद को एक पावर जैसे मिल जा रहा है Yeah, एंड इट मेक्स यू कॉन्फिडेंट, आई फील। yeah, definitely. It makes you confident that I know everything. I know this all things are inside me. So हमें अपने ऊपर ट्रस्ट करना है। See what is the intuition? आपको कितने बार पता चल जाता है होने से पहले ये चीज़ होने लगी। But you're not told or you're not, मतलब हमको सिखाया ही नहीं है कि आप अपने ऊपर ट्रस्ट करो। वी जस्ट इग्नोर। ये अभी जस्ट इग्नोर किया, मैं तो, मेरे साथ कहाँ हो सकता है, मैं को इतने थोड़ी शक्तियाँ हैं कि मैं समझ सकती हूँ ये सारी चीज़ें, एंड देन जस्ट वी लीव दैट थिंग अगेन, एंड अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम दूसरों से मांगने से गुजराते हैं। ऑफ कोर्स। हमें यही होता है ना, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, वो ज़्यादा ज्ञानी है, उसने बहुत सारी चीज़ें जान ली है तो उसी को सब पता हो। व्हाट वी आर डूइंग अपने साथ यहाँ पर, हमें आपको फिर एकदम नीचे वाले लेवल पे ले आया, तो दैट्स नॉट हाउ वी कैन वर्क थिंग्स आउट। उसमें फिर हम सब डिपेंडेंट ही रहेंगे। तो मुझे छोटी सी चोट भी लगी, मैं फिर आपके पास आ जाऊंगी, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऐसे मेरे साथ ऐसा हो रहा है, फिर मैंने 2 दवाइयाँ दी, आपको 2 चीज़ें बता दी, आप चले जाएंगी, 4 दिन बाद फिर आप उसी सिचुएशन में फंस के मेरे पास आएंगी। सो बेसिकली व्हाट एक्सेस डू इज टू नो व्हाट इज गोइंग इनसाइड योरसेल्फ, टू बी द काउंसलर ऑफ योर ओन लाइफ, ओके। सो कई बार जब आप हीलिंग करते हो, सो किसी जिसकी आप हीलिंग कर रहे हो, उनकी एनर्जीज भी आप तक पहुंचती होंगी, तो देयर माइट बी एनर्जीज जो आपको इफेक्ट करती होंगी। So these are like देखिए लाइफ सेविंग सिचुएशन, ठीक है, लाइफ सेवर्स जो होते हैं, जो बचाने जाते हैं लोगों को, वो इक्विप्ड होते हैं इन चीज़ों से, नॉलेज से। अब वो कहीं बाढ़ में गए और लोगों को बचा रहे हैं, तो वो डूब थोड़ी ना जाएंगे, तो इनके पास चीज़ें हैं कि वो अपने आप को सेव कर सकें और उनको बचा सकें जो राइट नाउ इन द दैट सिचुएशन है। सो बेसिकली हम वैसे रहते हैं, वी हैव द टूल्स, वी हैव इंफॉर्मेशन, एंड वी आर जस्ट डिटैच्ड। अभी आप अगर मेरे पास तकलीफ के साथ आई हैं, मैं आपके साथ रोने लग जाऊँ, तो मैं तो आपको सॉल्यूशन ही नहीं दे पाऊँगी, मैं समझ भी नहीं पाऊँगी, और आप और ज़्यादा अपनी तकलीफ में डूबते चले जाएंगे। सो आई हैव टू बी डिटैच्ड विथ योर प्रॉब्लम्स एंड योर इमोशंस एट दैट टाइम। सो हमको ये सिखाया जाता है, जब कोई रो रहा है तो उसे आप जाके हग मत करिए, उसे जाके कंसोल मत, एट दैट वेरी मोमेंट। तो वो उस समय ना अपने आप को और विक्टिम बना के रोता ही चला जाएगा। वो ना आएगा नहीं कि अच्छा ठीक है, मेरे को इस सिचुएशन से सॉल्व करना है, मुझे सॉल्यूशन निकालना है। बिकॉज व्हाट हैपेंड इज, एक मूवी चल रही है ना, आप उसमें हो, आप उसमें डूब गए हो, लाइक अब आप कोई इमोशन में हो, आप कोई डर में हो, व्हाटएवर सिचुएशन, आप उस सिचुएशन को अंदर से देख रहे हो। आई एम द पर्सन जस्ट वॉचिंग इट एज अ मूवी आउटसाइड। सो व्हेन आई एम वॉचिंग इट फ्रॉम आउटसाइड, आई नो नेक्स्ट सिचुएशन आप क्या कर सकते हैं। एंड व्हेन यू आर इनसाइड द सिचुएशन, यू विल बी लाइक तो खत्म है, दुनिया ही खत्म है यहाँ पर, इसके बाद तो सॉल्यूशन ही नहीं है, कुछ रास्ता ही नहीं। सो व्हाट आई टीच पीपल इज लाइक, मैं जनरल एक छोटा सा एग्जांपल बता रही थी, जस्ट कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन फॉर अ सेकेंड। वो ना जनरली उसमें अंदर होता है, दे आर लाइक सिंक्ड इन, उनको रास्ता नजर नहीं आता, दे आर लाइक ये तो एंड है, इसके इससे मैं बाहर निकल ही नहीं सकता। बट व्हेन अ पर्सन आउटसाइड ऑफ इट वॉचिंग, लाइक व्हेन आप मुझे उसे समझा रहे हो, आई एम सीइंग दिस एज अ स्टोरी, सो आई नो इसके बाद सॉल्यूशन है, इसके बाद आप रास्ता निकाल सकते हैं। दिस जनरली हैपेंस विद पीपल हु डू सुसाइड्स एंड ऑल। वो इतना सिंक इन हो जाते हैं अपनी सिचुएशन में कि उन्हें लगता है ये एंड है, यहाँ से सब कुछ खत्म है, कुछ रास्ता ही नहीं है। बट एज अ व्हेन आई एम व्यूइंग एज अ स्टोरी और एज अ मूवी, आई नो उसके बाद सीन्स हैं, उसके बाद सॉल्यूशन है, आप रास्ता निकाल सकते हैं। सो जब वो पर्सन उस सिचुएशन में फंसा हुआ है, आई जनरली आस्क देम टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन एंड सी योर लाइफ एज अ स्टोरी, एज अ मूवी और वॉचिंग इट, एंड नाउ से कि आप इसके बाद वाला स्टेप क्या ले सकते हैं। So it's like empowering them to come out of this situation and see कि हाँ इसके बाद भी रास्ता है, I can ask for help, I can wait for some time, I can और as we are now the director, आप समझ पाओगे ना नेक्स्ट शॉट क्या होना चाहिए। पर जब आप एकदम ही अंदर हो तो आपको we are like blank totally, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा। So that's how we say sometimes people, and the question you asked is like getting affected by the energy.
सो एक तो मैंने बता दिया वी आर इक्विप्ड विद द टूल्स। फर्स्ट पीपल बहुत डरते हैं नेगेटिव पॉजिटिव है नो। सो आई अगेन से दिस नेगेटिव पॉजिटिव इज अ पॉइंट ऑफ व्यू। इट्स द ओनली थिंग आपके थॉट्स हैं वो डायरेक्शन अलग है। मुझसे वो डायरेक्शन अलग है आपका सोचने का। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव अगेन इट्स अ मेड अप पॉइंट ऑफ व्यू कि हम लोगों को ना प्रेशर डालने लगे, अरे तू तो बहुत नेगेटिव है, अरे तुम्हारी नेगेटिव एनर्जी मुझ पर आ जाएगी। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स जस्ट दैट कि आप एक डायरेक्शन अलग सोच रहे हैं। विद एवरी पर्सन आई से नेगेटिव पॉजिटिव डिफरेंट होता है हर पर्सन का। फॉर मी समथिंग कुछ पॉजिटिव है, कुछ अच्छा है तो मैं उसे पॉजिटिव बना दूंगी, कुछ गलत है तो उसे नेगेटिव बना दूंगी। सेम गोज विथ यू, आपके लिए कोई चीज़ अच्छी है तो आप उसे पॉजिटिव बना दोगे, गलत है तो नेगेटिव बना दोगे। तो जो वो पर्सन डील कर रहा है मैं उससे प्रेशर डाल रही हूँ ना, आप नेगेटिव सोच रहे हो, आप नेगेटिव ना सोचो, आपकी वजह से दूसरों इफेक्ट हो रहे हैं, इसलिए उनका डायरेक्शन अलग है। जब हम चीज़ों को सिर्फ ऐसे समझने लगे कि हाँ वो चीज़ें अलग तरीके से सोच रहे हैं, अलग तरीके से देख रहे हैं, तो हम उनसे ज़्यादा पैसे भी फिर इफेक्ट होना बंद हो जाते हैं। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव का भी हमने बहुत प्रेशर डाला हुआ है लोगों के ऊपर कि ऐसे नहीं ऐसे सोचो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। सो व्हाट दे डू, लाइक फिर वो और कॉन्शियस होने लग जाते, डरने लगते हैं, अरे मुझे सब नेगेटिव बोलेंगे अगर मैंने कुछ बता दिया, मैंने कुछ बोल दिया। इट्स ओनली दे आर इन द डिफरेंट डायरेक्शन। सो अगर हम ऐसे समझने लगे ना तो हम चीज़ों से इफेक्ट भी नहीं होते हैं जल्दी। सो मुझे फिर इतने प्रोटेक्शन और इतनी ज़्यादा अपने आप को बांध के रखने की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट दैट आई हैव टू गेट इक्विप्ड विद मोर नॉलेज सो दैट आई कैन हेल्प देम टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। सो हमारी बॉडीज में 7 चक्रास होते हैं, तो व्हाट आर दीज एंड हम उन्हें कैसे जगा सकते हैं? So basically there are 7 chakras. Primarily हम 7 chakras पे ही work करते हैं. It starts with the root chakra जो सबसे नीचे होता है. Then the sacral chakra, solar plexus. Then there come heart chakra, throat, third eye and the crown chakra. These chakras are basically the energy centers of our body. हमारी बॉडी में 72 lakhs नाड़ियाँ होती हैं, तो नाड़ियाँ हम आजकल सुन भी रहे हैं ना, नाड़ी दोष है भी सारा। So there are 72 lakhs. They are like electric wires. जैसे इलेक्ट्रिक वायर्स कैसे सब जगह है, एंड देयर इज अ वन स्विच बटन फॉर दैट, का जो दिख नहीं रही होती हैं, बट वन स्विच बटन इज देयर। तो चक्रास हमारी बॉडी के एनर्जी सेंटर स्विच बटन है। सो जस्ट वी हैव टू एक्टिवेट दो स्विच बटन्स। बाकी सारी चीज़ें भी उसी से कनेक्टेड है, तो वो भी दे ऑल्सो गेट दोज एनर्जीज एंड द पावर्स टू हील एंड टू अगेन कम बैक टू द सेम सिचुएशन जो इनकी ओरिजिनल है थी। सो जो ये chakras हैं, how they get affected. Like छोटा सा एग्जाम्पल दे समझाती हूँ। There is a feeling of unworthy आपके अंदर, कि मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, whatever the एक self doubt, एक unworthy feeling. This affects your heart chakra. When your heart chakra is affected, हमारा back affect होने लगता है. When this just heart के पीछे जो back है, उससे related हमारा फिर root chakra block होने लगता है. When the root chakra is blocked, you start to feel unsupported in the life, in your journey of life. So उसकी वजह से फिर हमारा solar flex वो ब्लॉक हो जाता है, केज हो जाता है, and then you start feeling, start comparing your situation, your life with others. एक feeling of comparison हमारे अंदर constant रहेगा, अरे वो इतनी सुंदर है मैं नहीं हूँ, वो इतनी पतली है मैं नहीं हूँ, whatever in form of comparison आपके अंदर वो non stop चलता है। When you're comparing yourself constantly, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, will not be able to express your true self to anybody. The throat chakra get affected through that. सिर्फ एक चक्र से एक तो बहुत सारे चक्र इफेक्ट भी होने लगते हैं। दूसरा कभी कभी ऐसा होता है एक चक्र बहुत ज़्यादा किसी का ब्लॉक है। Okay. Sometimes I'm not able to express, so my throat chakra is blocked. Sometimes there is no self love in my life, मैं अपने आप को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं दे रही हूँ, कोई अपने आप को प्यार नहीं कर रही हूँ, ख्याल नहीं रख रही हूँ, my heart chakra is blocked. So ऐसे कोई चक्र ब्लॉक होते हैं कभी कभी because of one सारे ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं, and then these chakras, this energy center is blocked. Just like saying ना आपकी बटन एक बंद है तो आपके पास लाइट आएगा कैसे, बॉडी में लाइट ही नहीं आएगा तो वो पार्ट अंधेरे में रहने पर that starts to get affected and it converts slowly into the pain, into the frustration, anger issues. I'm not talking only about the pain, ये जो हमारा frustration, anger, unhappiness या फिर हम जनरली लोगों पर चिड़चिड़ निकाल रहे हैं, हाँ बहुत ज़्यादा सैड रह रहे हैं, डिप्रेस्ड रह रहे हैं, unnecessary. So because of sometimes those chakras are blocked, आप acknowledge नहीं कर रहे, आप समझ नहीं रहे कि आप वहाँ प्रॉब्लम है, आप सिर्फ outer then start resolve करने लग जाते हैं. So then this I told you like
अनवर्दी फीलिंग से मुझे बैक पेन शुरू हो गया। अब मैंने उस बैक पेन का इलाज करवा के आ गई बाय टेकिंग सम सप्लीमेंट्स फ्रॉम द डॉक्टर। वो सप्रेस हो गया वहाँ पर मेरा इशू तो स्टार्ट हुआ बिकॉज आई एम नॉट अब मैं अपने आप को वो क्रेडिट ही नहीं दे रही हूँ, मैं अपने आप को प्यार ही नहीं दे रही हूँ, मैं अपने आप को समझ ही नहीं रही हूँ कि आई एम ऑल्सो समथिंग। आई एम नॉट गिविंग दैट लव एंड केयर टू माई सेल्फ। उतना सा ही कर लो, आपका बैक पेन स्टार्ट होना, ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम जैसे चक्रा पे वर्क नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो वो मेडिसिन कुछ दिन काम करे एंड फिर अगेन आगे वापस आना शुरू हो जाता है। Then goes with that माइग्रेन का इशू। अच्छा ये बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और फियर का कारण होता है, जो एक एक्सट्रीम आपको हेडेक देना शुरू करती है। वन ऑफ द रीज़न इज़ दैट आई एम नॉट सेइंग कि वो हमेशा आपको डर है या एंग्जाइटी का ही प्रॉब्लम होगा। एक रीज़न ये भी हो सकता है, when the person come to us, then they talk, then they come out with their things, तो समझ में आता है okay, these were the things which started with these problems in their life. ओके So that ways. और आपने पूछा कैसे हील कर सकते हैं चक्रास। एक सिंपल, बहुत सिंपल टेक्निक है। 5 minutes breathing exercise, 5 to 10 minutes, starts with 5 minutes I'll say, then slowly increase the time. जब आप ब्रीथ कर रहे हैं, क्लोज योर आईज एंड देन ब्रीथ फ्रॉम द रूट चक्रा, ओके, एंड स्क्वीज योर स्टमक इनसाइड, लाइक आपने इसको स्क्वीज किया ऊपर, जैसे स्ट्रॉ से कैसे पानी खींच रहे हैं ऐसे आप ब्रीदिंग करेंगे। फील लाइक ब्रीदिंग फ्रॉम द रूट चक्रा, स्क्वीज योर स्टमक, hold it to your head, crown chakra, like hold for as long as you can hold, 5 seconds, 10 seconds, जितना आप कर सकते हैं, and then release. ओके So ये जो हम breathing exercise कर रहे हैं, इससे हम अपने पूरे चक्रा को एक्टिवेट कर रहे हैं। We are giving the oxygen to all those chakra and then holding it to the crown chakra and then releasing. ठीक है ये बहुत सिंपल टेक्निक है जो आप ऑन द डेली रूटीन स्टार्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपको इफ देयर आर मेनी ब्लॉकेजेस, बहुत ज़्यादा इशू है, तो आपको ऑब्वियसली यू नीड अ काउंसलिंग एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड आपका मेन प्रॉब्लम क्या है और क्या है। बट दिस बेसिक एक्सरसाइज यू कैन स्टार्ट इन योर डेली रूटीन एंड यू सी दैट आपको कितना मज़ा आ रहा है। यू सी दैट दैट चक्र स्लोली स्टार्ट एक्टिविटी, बिकॉज समटाइम्स इट हैपेंस मेरे थ्रोट में बहुत एनर्जी है बट मेरा सोलर प्लेक्सस बहुत वीक है, वहाँ पर कोई एनर्जी नहीं है। एंड विद दिस एक्सरसाइज एंड क्रिएटिंग अ फ्लो and giving the oxygen to all those chakras and giving the light energy to all those chakras so that वो भी धीरे धीरे उनको भी energy मिलते जाए, they also activate and then you'll understand okay मुझे यहाँ problem थी। कभी कभी एकदम ब्लॉकेज होता है ना, तो इंसान समझना भी नहीं चाहता, जानना भी नहीं चाहता है, उस चीज़ को कंसिडर ही नहीं करना चाहता है कि अरे मुझे ये तकलीफ है। तो अब एक सिंपल एक्सरसाइज से भी ना आपको लगेगा कि नहीं यार, there is a solution, there is a way, or can be handled. Yes. So there's a simple breathing exercise you can do. It's like oiling your machine. Exactly. And all the techniques in this healing journey are so simple ना, आपको लगेगा कि इतना सा काम आ रहा है actually. And will be like, इसलिए भी लोग कभी कभी ना वो करना नहीं चाहते। हाँ, ये बता रहे हैं मुझे। ओ लोगों को ना मेहनत और ज़्यादा काम करने की आदत हो जाती है ना, तो वो लोग सिंपल चीज़ों को ध्यान ही नहीं देते हैं। बट यही सिंपल चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, बहुत। बीट योगा, बीट मेडिटेशन, ये ना इतना फ्री होने लग गया, इतना ज़्यादा, फिर लोग बोलते हैं इससे क्या। बट दैट इज़ द थिंग जो हमारी चीज़ों को बैलेंस करना जानती है। राइट, बेसिकली विद योगा एंड मेडिटेशन ऑल्सो हमारी बॉडी मूव करना चाहती है। if you anything if not moving, it becomes stagnant and it start destroying, सड़ने लग जाता है वो। हाँ हमारा बॉडी भी वैसे ही बना है, मूवमेंट, हर पार्ट को मूवमेंट चाहिए, तो उसको वो ऑयलिंग भी मिलते रहती है। सो मेडिटेशन हमारे इनर चीज़ों को, एनर्जी को मूव कर रहा है, और योगा हमारी आउटर बॉडी को। हाँ तो सारी ये मूवमेंट बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। You said about self love, self care. Yeah. So self love, self care हम सुनते तो हैं, बट हम ये कैसे अटेन करें? कई बार लोगों को नहीं पता होता है। मुझे लगता है सेल्फ लाइफ का डेफिनेशन ही लोगों को गलत पता है। They think buying good stuff for yourself nowadays, like when I talk to some ladies, characterize it, नहीं सेल्फ लव नहीं है, नहीं मैं अपना बिल्कुल ख्याल रखती हूँ, मुझे जो ड्रेस पसंद आती है मैं बिल्कुल जाके खरीद के आती हूँ, मुझे जो खाना, बट दैट इज नॉट द ओनली सेल्फ लव विच योर बॉडी रिक्वायर्स। सेल्फ लव इज एक्नॉलेजिंग योर सेल्फ,
अपने आप को समझना, अपने आप को प्यार देना। और मैं इसको इतना इम्पोर्टेंट समझती हूँ बिकॉज दिस इज़ द मिरर, ये एक मिरर है जो मैं आपको शो करूँगी टू बिहेव विद माई सेल्फ। लाइक अगर मैं अपने आप को वो क्रेडिट, वो प्यार, वो चीज़ें नहीं दे रही हूँ तो इन अ वे मेरे जो सराउंडिंग है ना वो मुझे सेम ट्रीटमेंट देंगी। सो अगर आपकी लाइफ में आपको प्रॉब्लम है कि आपका कोई रिलेशन वर्क नहीं कर रहा है, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे आपको वो प्यार नहीं दे रहे जो आप उनसे, बिकॉज हम डिपेंड है कि वो करेंगे ना तभी मेरे को लगेगा कि मैं कुछ हूँ, तभी मैं अपने आप को वो प्यार और एक्नॉलेजमेंट दूंगी। बट दैट इज़ नॉट द वे, इट स्टार्ट्स फ्रॉम यू। आपने अपने आप को वो चीज़ें नहीं दी हैं, अपने आप का वो ख्याल नहीं रखा है, तो दूसरे सेम आपके साथ बिहेव करेंगे। यू आर सेटिंग एन एग्जाम्पल कि ये तरीका है मेरे साथ बिहेव करने का। सो in general, I'll not say only males and or only females, हम कभी इन साथ में कहीं जा रहे थे, लाइक आप कर लो, आप कर लो, तुम कर लो, मैं क्या खाऊंगी, मैं क्या दे, तुम ऑर्डर कर दो, ऐसे। तो इट्स नॉट लाइक कि मैं आपको सेल्फिश होने बोल रही हूँ, इट्स सेल्फिश तो कोई वर्ड ही नहीं होता, इट्स सेल्फ इश्क बेसिकली। बट वहाँ पर हम एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि एक आप अपनी पसंद का मंगा लो, एक अपने हस्बैंड का मंगा लेते हैं, हम मिल के उन चीज़ों को वहाँ पर चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। और इट्स नॉट ओनली अबाउट द ईटिंग थिंग, कभी कभी हम इन जनरल भी अपना ख्याल नहीं रखते। मैं इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले मैं अपने हस्बैंड और बच्चे का काम कर लेती हूँ। especially with Indian women. या सो व्हाट यू हैव टोल्ड योरसेल्फ, व्हाट एग्जांपल क्या सेट कर दिया कि मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। सो नाउ द अदर पर्सन इज ऑल्सो ट्रीटिंग यू द सेम वे, दे आर नॉट कंसिडरिंग यू इम्पोर्टेंट दैट प्लीज, दे आर लाइक हाँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके साथ मैं चला लूँगी। एंड देन यू फील अरे मैंने मेरा ख्याल ही नहीं रखा, इसलिए तो मुझसे पूछा ही नहीं। बट I ask generally people, did you क्या आपने वो अपने साथ किया, अपने आप को वो प्रायोरिटी दी, अपने आप के लिए वो काम किया? नहीं। तो आपने तो एनर्जेटिक एग्जाम्पल छोड़ ही दिया सामने वाले के लिए कि यही तरीका है मेरे साथ बिहेव करने का। बट व्हाट दे सेज, फिर फीमेल का रिप्लाईज होता है यार पर मैंने तो उसे इम्पोर्टेंस दी ना, उसको भी मुझे इम्पोर्टेंस देनी चाहिए थी। सो यहाँ आपने तो उस सामने वाले को ही हीरो बना दिया, भले वो बच्चा हो या कोई भी हो। एंड आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द हस्बैंड एंड द किड्स, बी इट एनी पर्सन। आपने तो उसे हीरो बना दिया, तो उसे समझा दिया ना कि यू आर द फर्स्ट प्रायोरिटी इन माई लाइफ, तो वो भी अपने आप को ही अपनी प्रायोरिटी रखेंगे। It happens in workplaces also. एवरीवेयर, एवरीवेयर। सो सेल्फ लव इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी बेटर चाहते हैं तो सबसे फर्स्ट शुरुआत तो सेल्फ लव से ही होती है, बी इट एनीथिंग। अगर आपको मनी भी चाहिए, रिलेशनशिप सुधारना है, आपको अपनी विशेस फुलफिल करनी है, आपको अब कोई भी अचीवमेंट चाहिए अपनी लाइफ में, इट स्टार्ट्स विद सेल्फ लव। It's very सबसे इम्पोर्टेंट चीज अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपने आप को वो क्रेडिट दो, अपने आप को वो प्यार दो, अपने आप को वो एक मोटिवेशनल पुश दो। ट्रीट योरसेल्फ एज अ स्मॉल बेबी। हम अपने लिए स्ट्रिक्ट टीचर बने होते हैं हमेशा। अगर आपसे कोई गलती हो गई तो आपने मैं कैसे कर सकता, मुझसे कैसे हो गया, मैं तो ये कर ही नहीं सकती ना, आप अपने आप को ही कोसना शुरू कर देते हैं। पर यही आपका बच्चा कोई गलती करे या आपका हस्बैंड कोई गलती करे तो आप कैसे उनके पास जाते हैं मोटिवेट, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ठीक हो जाएगा, आप कर सकते हो, कुछ नहीं होता, ये तो हो ही जाता है। सो बी दैट विथ योरसेल्फ फर्स्ट, बी योर बेस्ट फ्रेंड, बी योर बेस्ट मोटिवेटर इन योर लाइफ। अगर आपसे कुछ चीज़ गलत हो रही है या आपसे कुछ चीज़ अचीव नहीं हो पा रही, अपने आप को पुश करो। नहीं, कुछ नहीं होता। आपकी बॉडी इज़ योर स्मॉल बेबी। जिस तरीके से एक छोटे बच्चे के लिए हम कुछ भी करने के लिए रेडी रहते हैं ना, वैसे अपना साथ दो, वैसे अपना ख्याल रखो। एंड यू सी, आई हैव सीन इन माई लाइफ दिस चेंजिंग द मोमेंट आई चेंज। अपना ख्याल रखना, अपने लिए बोलना कि हाँ कुछ नहीं होता। आई हैव चेंज्ड, माई फैमिली चेंजिंग, पीपल अराउंड मी चेंजिंग। मैं बहुत नॉर्मल एग्जाम्पल दे रही हूँ फॉर माई डिवोर्स थिंग गोइंग ऑन। आई वॉज नॉट एट ऑल ओके विद द डिवोर्स हैपनिंग इन माई लाइफ। तो जब मैं तब लोगों से मिलती थी ना, हाय बेचारी, बिकॉज तब मैं एक विक्टिम थी, सब मुझे उस बेचारी नज़रों से ही मिलते थे, इवन माई फैमिली। द मोमेंट आई गॉट ओके कि कोई बात नहीं, इट हैपेंस, इट्स अ प्रोसेस, ये हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। I saw people changing. अब मुझे लोग मिलते हैं ना, even they are married, they are like, wow, we have got a single life again. It's just my thought changed and I have seen people changing around me. The same people, पहले मिलते थे तो बेचारी नज़रों से देखते थे, अब मिलते थे they are like, wow, कोई बात नहीं होता है। मतलब उनका रिएक्शन भी उतना ही नॉर्मल और वैसा मिलता है मुझे, जैसे हम अपने आप को नॉर्मलाइज। यस डेफिनेटली।
So I have said, like, you know, you're showing the mirror to people, like the way you are treating yourself. So basic self love मैं आपको स्टार्ट करना बता सकती हूँ. मिरर में अपने आप को देखिए. हम वो भी नहीं देखते हैं. अच्छा हम हाँकते हैं, like हाँ मैं ये सब हो गया लगा चलो चलो करो. अपने आप को मिरर में देखो. Like really see yourself like you're seeing your loved one. you know? उतने प्यार से अपने आप को देखो and say I love you. And I'm really grateful for you. You know, like अपने आप को ये बोलो I'm really grateful for you. और वो love energy दो. You start that self love journey from there itself. Just see in your mirror. जानबूझ के देखो मिरर. जितनी बार मिरर देख रहे हो उतनी बार बोलो I love you. So this is one of the technique by Louis Hay. Mirror exercise. Okay, which is very beautifully explained that thing in the life. Okay, so I really suggest people to read that book, Mirror Exercise by Louis Hay. Okay. It really transforms your journey of self-love. Okay. Yeah. I'll also surely. There are some exercise, there are affirmations, there are things, you know, उन्होंने समझाया है in detail कि कहाँ वो चीज़ें हमारे अंदर दबी रह जाती है जो हम अपने आप को देखना ही नहीं चाहते. So there are a process which she has explained very beautifully. Okay. So say, you know, read that book. Okay. Mirror Exercise by Louis Hay. Yeah. And I'll suggest everyone to please read that book. Yeah, because that's the, you know, major thing to change everything in your life. Very first basic step to achieve things, manifest things, you know, to achieve to a greater height also. This is the first step. It's self-love. So now moving forward, what is law of attraction? आजकल बहुत लोग law of attraction को अलग-अलग तरीके से समझा रहे हैं. But what is your point of view for that? See, basically law of attraction is like attract likes, you know. Okay. जो हम अपने लाइफ में चाहते हैं वो हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो वो कैसे होगा? So law of attraction को जनरली लोग manifestation से कर लेते हैं and they also says that, you know, basically this universe works with asking you can receive. Okay. So आप मांगोगे तो आपको मिलने लगेगा. हम कितने बार मांगना भी नहीं चाहते, बोलते ही नहीं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए. Ask from the universe. I'm not saying go and ask from the people or something. Universe is my saying of thing. You can, you know, say with whatever you believe. God है, आप जिस भी God को मानते हैं, that is the universe. Yeah. So आप मांगो चीज़ें क्या चाहिए आपको. First step is this. तो आप आज लोग अब से ही law of attraction समझने लग जाते हैं. The law of attraction works with your vibration. Works with what energy you are in right now. So, you know, जब आप कुछ चीज़ मांग रहे हैं, so just feel the energy कि आपको मिल जाएगा तो आपको क्या feeling आएगी. Like you're asking right now for money, some amount of money, or a new house. So, you know, just feel like closing your eyes and feel कि आप जब वो मिल जा रहा है तो what is your energy at that moment? किस happiness, किस feeling में, किस confidence में आप हो जब आपको वो चीज़ मिल जा रही है. When you be that energy, you attract those things in your life more easily. It's like a magnet. आप उस energetic feel में रहोगे तभी दूसरे magnet को attract कर पाओगे. Right? अदरवाइज तो अगर आप मैं बहुत लो एनर्जी में हूँ तो दूसरा मैग्नेट तो मेरे से आकर चिपकेगा भी नहीं. तो इट्स लाइक आई एम रेजिंग माई वाइब्रेशन, माई एनर्जी, मुझे ये चीज़ चाहिए. एंड देन यू आर अट्रैक्टिंग दोज सिचुएशंस, दोज सर्कमस्टेंसेस इन योर लाइफ टू, यू नो, कम एंड शो अप इन योर लाइफ. सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब आप मांग रहे हैं कुछ चीज़, जस्ट इमेजिन, जस्ट फील द एनर्जी. मोर देन इमेजिन अगर नहीं होता है तो जस्ट फील द एनर्जी कि जब आपको वो अचीव हो जाएगा, वो मिल जाएगा तो आप कौन से ऑरा में रहोगे, कौन सी एनर्जी में रहोगे. लाइक अभी हम बोल रहे हैं ना मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं, तो यू आर इन अ वेरी डिमिनिश्ड, वेरी लोअर वर्जन ऑफ योर एनर्जी. सो आप वही चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं अगेन. यू आर अट्रैक्टिंग मोर ऑफ no confidence, more of like no money situation, more of no people meeting you, coming you, more of no followers. Basically जो हमारे words हैं ना, अगर हम उन पे ध्यान देने लग गए, so we can achieve everything. So you have to be very much present what you are talking to yourself. Okay. एक constant chatter चलता है mind में. 24 hours you are talking to yourself. Yes. 24 hours I say, you know. उस समय बहुत बार demotivation मिले तो उसमें बहुत बार गलत बातें भी निकल जाती हैं. मैं तो ये नहीं कर सकती, मेरे साथ तो ये नहीं हो सकता. और आज के चल रिसीव में मैं ये भी बताऊंगी, आपने मांगा एक बार, मुझे अच्छा घर चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, और कांस्टेंट चैटर क्या चल रहा है, पता नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा. मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी,
मैं तो पतली हो ही नहीं सकती, ये तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है। या फिर अगर मुझे ये काम करना है तो उसके लिए मुझे बहुत मेहनत लगेगी, मुझे बहुत रिसोर्सेज लगेंगी। तो आपने वहीं कैंसिल कर दिया 10 बार। मांगा तो सिर्फ एक बार था, 10 बार उसे कैंसिल कर दिया। या इम्पेशेंस हो गए, कब मिलेगा कब मिलेगा। हाँ, उतनी बार अपने इम्पेशेंस होकर भी उन चीज़ों को डिले कर दिया या कैंसिल करते जाओ। जस्ट गेट इनटू दैट एनर्जी दैट यू हैव अचीव दैट थिंग, यू हैव अचीव दैट पोजीशन। जब आपका एनर्जी वो उस लेवल पर आएगा, आप डेफिनेटली अट्रैक्ट करोगे सब। डोंट गो इनटू द हाउ प्रोसेस दैट वेरी मोमेंट। डोंट गो इनटू द लाइक ओहो मैं कर पाऊंगी भी नहीं, वो डाउट, वो फियर, वो एंजाइटी वाला सिचुएशन। जस्ट फील दैट एनर्जी एंड आस्क कि मुझे एक्शंस क्या लेने हैं यहाँ पे, एंड देन लीव। हम जितना उन चीज़ों के पीछे भी पड़े रहेंगे ना, तो भी वो चीज़ें हमारे पास नहीं आती। सो जब उसको बोल के छोड़ दो, एंड देन थ्रू आउट द डे आपको दिखेगा चीज़ें हमारे फेवर ना हो रही है, अरे ये चीज़ आ गई मेरे पास, इतना ईजी हो गया। दे हैव टू बी रिलैक्स्ड आफ्टर आस्किंग दोज थिंग्स, आफ्टर रेजिंग योर वाइब्रेशन, योर एनर्जी टू दैट लेवल जो आप चाह रहे हैं, एंड जस्ट लीव दैट थिंग वहाँ पर। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स विथ योर वाइब्रेशन। Whenever you are asking those things, feel that energy of achieving it. ओके। And आप उस एनर्जी में फिर रहिए। It's like आपने 5 चीज़ें मांगी अभी, है ना? And ask what will your future self will be when you achieve all those things. Okay, now get the energy of those things. And now be in that energy throughout the day. Okay. Every day remind yourself, मुझे इस एनर्जी में रहना है. And you'll start attracting those things into your life. Okay. एंड हाउ डू वी स्टार्ट मैनिफेस्टेशन? जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर चीज़ कंफ्यूज ही कर रही थी। The first thing is journaling. I say first, in detail write what are your wishes. ओके। Be very specific. किस तरीके से चाहिए, क्या चाहिए। तो जब जितने आप स्पेसिफिक हो गए ना, आपको उतना समझ में आएगा कि अच्छा मुझे ऐसा चाहिए प्लीज। So first thing is write, journalize it. Second is you can make a vision board. Okay. So vision board is visual representation of what you want to attract in your life. So उनका pictures from the Pinterest और Google Images जो आपने लिखा है some form, उनका pictures लीजिए, एक vision board में लगाइए, and daily just see that, remind yourself कि मुझे इस energy में रहना है। But seeing the vision board आपको ये remind करना है अपने आप को कि मुझे इस energy में रहना है to attract all those things into my life, and then just go through your day. 5 minutes अपने आप को देना है मॉर्निंग और नाइट। 5 मिनट्स जब आप देते हैं सुबह उठ के और रात में सोते समय तो फिर भी ईजी है। सुबह उठ के हम जनरली ना एक रश एनर्जी में उठते हैं, दिमाग उठते साथ ही अच्छा ये करना मुझे करना, अरे बच्चे की टिफिन बनाना है ना, सो मैनी थिंग्स गोइंग ऑन। सो आप क्या करते हैं, आप थ्रू आउट द डे अपने आप को असाइन कर दिया कि मुझे सिर्फ इम्पोर्टेंट काम करना, तो आपकी दिनचर्या ना ऐसे ही निकल जाती है इस इम्पोर्टेंट काम करते हुए। तो आपको 5 मिनट अपने आप को देना है, ये 5 मिनट सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ 5 मिनट कह रही हूँ मैं अपने, बहुत ईजी है निकालना। 5 मिनट जब अपने को देते हैं ना, आप एक ठहराव में आते हैं, लाइक ओके इवन आई एम इम्पोर्टेंट, एंड यू स्टार्ट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। फिर क्या होगा, आप धीरे धीरे अपने आप को और टाइम देने लगते हैं, एंड द प्रोसेस स्टार्ट विद लाइक थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, टॉकिंग टू योर सेल्फ, जनरलाइजिंग न्यू आइडियाज। ये एक स्टार्ट ऑफ द डे से हमने अपने आप को असाइन कर दिया, ये बहुत जरूरी है। और आप जितने रश एनर्जी से गुजरेंगे ना, देखना आपका दिन पूरा सिर्फ इम्पोर्टेंट काम करते हुए निकल जाए। हाँ, ये तो मैंने भी पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, ये ऐसे ही होता है। तो विजन बोर्ड एक आपने बहुत अच्छा बताया, शायद आपने वर्कशॉप भी कंडक्ट किया है। मैंने देखा था आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल। यस यस। सो ये मैं उनको अवेयर कराने से, जिस द न्यू ईयर इज कमिंग, सो आई एम लाइक वांट टू गिव दैट अवेयरनेस टू द पीपल दैट यू कैन लाइक मेक दिस न्यू ईयर हाउ यू वुड रियली लाइक टू हैव। तो कैसे आप चाहते हैं इस न्यू एनर्जी में रहना, जो चीज़ें अचीव करना, उनका एक छोटा सा प्रोसेस है। सो उसमें मैं सेल्फ लव के बारे में ज़रूर समझाती हूँ, हैविंग ग्रैटिट्यूड एंड फीलिंग दैट एनर्जी, कि आप किस एनर्जी में रह के चीज़ों को अपने लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं। दैट वर्कशॉप इंक्लूड्स अ बुकलेट देयर है, फिर हम बुक बोर्ड्स और पिक्चर्स भी मैं जो इन जनरल होता है सबका विश को मैं ले आती हूँ। पर्सनलाइज अगर किसी को करवाना है तो वो भी हम करवा रहे हैं। बेसिकली तो सबको घर चाहिए, हर पैसा कार टू वर्ल्ड टूर। या तो क्या होता है ना, जब ये चीज़ें मिलने लगती है ना, तो आप और आगे बढ़ने लगते हाँ,
तो आपका विश रहता है कि अरे मैं ये भी था, ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी निकाल सकती हूँ। पर अगर आप बहुत लिमिटेड उसमें चलोगे ना, तो हम ये कार पैसा घर में ही अटके रह जाते हैं। करेक्ट। इसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अचीव कर सकते हैं। फिर लोग जनरली तब जाते हैं, मुझे अब हैप्पीनेस चाहिए, अब पीस चाहिए। तो जब मैं उस विजन बोर्ड एक्सरसाइज में उनको हैप्पीनेस और पीस भी वो इंक्लूड करवाना चाहती हूँ, दैट इज़ द अल्टीमेट गोल। पैसा मिल जाएगा, कार मिल जाएगी, तो आप क्या एनर्जी में क्या रहना चाहते हैं? यही ना कि मैं खुश हूँ, मैं पीसफुल हूँ, मैं तो फ्रीडम एंजॉय करना चाहें। दैट इज़ व्हाट यू हैव टू स्टार्ट फीलिंग राइट नाउ, बिकॉज यही अल्टीमेट गोल है। तो आप अभी से जब हैप्पी होना शुरू करेंगे विद योर प्रेजेंट थिंग्स, देन ओनली यू विल अट्रैक्ट मोर ऑफ व्हाट यू आर एक्चुअली डिजायरिंग इन योर लाइफ। बाकी तो मटेरियलिस्टिक ही हाँ, वो तो कभी वो नेवर एंडिंग है बेसिकली। एक घर मिल जाएगा तो आप बोलोगे मुझे कुछ चाहिए, अब मुझे और बड़ा बंगलो चाहिए, अब मुझे एंटीला चाहिए, तो वो तो खत्म नहीं होने वाला। सेम गोज़ विद द कार की भी डिमांड एवरी टाइम विल गेट इंक्रीजिंग कि अब मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। बट गोल क्या है ये सब पाने का? अल्टीमेटली एंड में आपको हैप्पीनेस और पीस, फ्रीडम, एंजॉयमेंट यही चाहिए। स्टार्ट फीलिंग दैट राइट नाउ। वो चीज़ें मिलती जाएंगी, डेफिनेटली मिलेंगी। आई एम नॉट सेइंग दैट्स अ रॉन्ग डिजायर, दैट्स ऑब्वियसली एवरीबॉडी डिजायर दैट लग्जरी, ऑब्वियसली you'll have that, but start first feeling that happiness, first feeling that contentment, gratitude कि यहाँ बस जो है कितना अच्छा है ऑलरेडी, वो और ग्रो होगा। एंड आजकल एंजाइटी भी बहुत बढ़ गई है लोगों में, तो हाउ टू डील विद इट? मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर एंजाइटी को डील करने का है, तो खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। लाइक 10 मिनट्स, कीप योर फोन असाइड, जैसे एयरप्लेन मोड में डाल दूँ, बच्चे जब आपको डिस्टर्ब ना करें, वो एक सिचुएशन पोजीशन में चले जाओ, हैव योर कॉफ़ी और टी व्हाटएवर, और वो भी नहीं चाहिए तो वो भी ना रखो। नो म्यूजिक, नथिंग, जस्ट डू द राइटिंग थिंग। एक वर्बल मोमेंट है ये, जो आप निकाल दो अपने अंदर, जितना भी है ना कचरा, सब एक लिख के निकाल दो। बर्न इट, लीव इट, व्हाटएवर यू वांट टू डू आफ्टर दैट। जब आप वो निकालोगे ना, जब आपको एंजाइटी फील हो रहा है, डर, बेसिकली ये थॉट्स है, जो बहुत टू मच इनटू द फ्यूचर चल रहा है कि मेरे साथ ये हो गया तो, मेरे साथ वो हो गया तो, ये एंजाइटी का फेज लेने लगता है, जो कि स्टार्ट होता है विद द नॉट गुड ईटिंग हैबिट्स, सोशल मीडिया, पीयर प्रेशर, एवरीथिंग। तो ये ना हम बोलने में भी शर्माते हैं लोगों को कि मेरे को ये हो रहा है यार, मैंने उसका देखा, उसके बाद से मुझे ये सब की, तो मैं आपको बोलेंगे तो मत देखो, मत करो। तो अब मैं ये नहीं सुनना चाहती आपसे कि मत देखो, मत को, क्योंकि अभी फीलिंग आ गई है ना, मैं अपने आप को कंपेयर कर रही हूँ, वो चीज़ें देखकर अपने आप को बुरा फील। लिख दीजिए, जर्नलाइज कर दीजिए। उस 5 मिनट वो एक्सरसाइज करने के बाद में यू फील गुड, विल बी लाइक ये चीज़ें बाहर निकल गई, वो अफेक्ट नहीं कर रही, वो एक अनरिजॉल्व इशू होकर कहीं ना कहीं बॉडी में दब नहीं रहा, वो एंग्जाइटी को एक 5 मिनट का ब्रेक मिल जाएगा, टू फील लाइटर कि व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन इनसाइड यू सर। फिर आपको मेन इशू भी समझ में आने लगता है कभी कभी कि अरे ये चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे बॉदर कर रही है, तो आप खुद ही समझ जाओगे कि क्या इसका रास्ता भी निकालना है मुझे। और लिखना पॉसिबल नहीं है, उस जगह से हट जाइए। लाइक अभी आप यहाँ बैठे हैं और आपको वो एंग्जाइटी वाले थॉट्स आ रहे हैं, इमीडिएटली चेंज योर प्लेस, इमीडिएटली गो आउट, गार्डन में चले जाओ, उस जगह से चले जाओ, उस घर से 5 मिनट के लिए निकल जाओ। ओके। तो आपको एक एनर्जी का चेंज मिलेगा, ब्रेक मिलेगा। हम क्या करते हैं, अगर हमें मुझे एंग्जाइटी या डर का थॉट आया, मैं उसमें सिंक ही नहीं होते चले जाते, फ्लो में चले जाती हूँ, फिर मैं और चीज़ें सबूत लेके आती हूँ कि हाँ मुझे एंग्जाइटी है, देखा मेरे साथ ये हो रहा है चीज़, तो मैं ना उसमें डूबती ही चली जाऊँगी और अपने आप को सिचुएशन और चीज़ें ला के देते रहूँगी कि हाँ सही, मेरे साथ सच में ऐसा ही हो रहा है। आगुमिनी और वो हम खुद ही कर रहे होते हैं अपने साथ। तो हमें खुद ही को अपने आप से बचाने के लिए ये 2 तो अपने आपको इमीडिएट एक्सरसाइज बता रही हूँ, बिल्कुल करके देखिएगा, आपको बहुत रिलीफ मिलता है तुरंत। पोजीशन चेंज योर प्लेस दैट मोमेंट, राइट इट डाउन। और एक राइटिंग नहीं तो हम खुद से बात करके उस रिकॉर्ड कर लो, ओके रिकॉर्ड कर लें, रिकॉर्ड कर डिलीट कर दो। हाँ बस निकालना ज़रूरी है उस समय, निकाले नहीं ना तो वो थॉट बढ़ता ही चला जाता है। इसलिए मैंने ना अपने आप को वही बताया, फिर उसमें बहने का काम शुरू कर दूंगी। जैसे ही रिकॉर्ड करूँगी ना, हम अवेयर हो जाते हैं कि क्या बोल रही हूँ मैं, ये क्या सोच रही हूँ मैं कुछ और कर सकती हूँ, मैं कुछ और देख सकती हूँ और क्वेश्चन योरसेल्फ, व्हाट इज़ दिस। आपको एंजाइटी वाला थॉट आ रहा है, क्वेश्चन योरसेल्फ इमीडिएटली। ये दोनों भी, 3 चीज़ भी आप नहीं कर सकते, क्वेश्चन करिए अपना, ये क्या सोच रही हूँ मैं, ये क्या चीज़ है,
ये अभी मेरी लाइफ के लिए रेलिवेंट है, क्योंकि कितने बार वो फ्यूचर का थॉट्स चल रहा है, 4 साल बाद ऐसा हो जाएगा, देखा ये लोग तो अभी से ऐसे कर रहे हैं, फिर 10 साल बाद कैसे करेंगे, 50 साल बाद कैसे, चलो व्हाट इज दिस रेलिवेंट राइट नाउ, अभी ये ज़रूरी है ये थॉट मेरे लाइफ के लिए, लाइक अभी तो उसका काम ही नहीं है, ये ज़बरदस्ती मुझे परेशान कर रहा है थॉट। और फिर मैं अपने बच्चे की कोई एक्टिविटी देख के या अपने पेरेंट्स को एक्टिविटी देख के हस्बैंड की, मुझे तो पता है मेरा बुढ़ापा कैसे जाने वाला है, ये थॉट हमें एंग्जाइटी ले आता है, सीइंग हमारे बच्चे की अभी कोई बदमाशी या अभी कोई ऐसा बिहेवियर एक एंग्शियस थॉट ले आता है, इज दिस रिलेवेंट राइट नाउ? नो, you'll be like stopped then and there. So question yourself, write it down, record it, change your place. These are the few things you can do to stop your anxiety at that moment. एंड मेडिटेशन डेली हमें करना चाहिए। आई थिंक आजकल के जो इतने बिजी शेड्यूल में हम ये कर नहीं पाते हैं, बट इट्स ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सी बिकॉज पहले तो मेडिटेशन का मतलब ही लोगों को पता नहीं। मेडिटेशन इज जस्ट मीटिंग योर इनर सेल्फ, अपने आप से मिलना, अपने आप की, जैसे हम अभी इतने टाइम से चक्रास और इन सब की बातें कर रहे हैं, इन सब को एक्टिवेट करना, अपने थॉट्स और अपने आप को समझाना, रोकना, रिलैक्स करना, दैट इज़ द मेन थिंग। क्योंकि हम हमेशा भागने में ही लगे रहते हैं, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, और हमारा ये जो दिमाग है ये हमें फ्यूचर के थॉट्स में उलझाए रखना या नेक्स्ट क्या करना है इसमें उलझाए रखने का काम करता है। इसे शांत करना बहुत ज़रूरी है, इसकी ना सुनना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन इज़ ओनली टू क्वाइट योर माइंड, शांत करना अपने आप को, रिलैक्स करना, कि अपने आप को टाइम देना। सो मैम, आप टैरो कार्ड रीडर भी हैं, सो हाउ डज इट हेल्प अ पर्सन? सी टैरो कार्ड से आप अपना कन्फ्यूजन, अपना कुछ चीज़ आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, उसमें क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, कभी येस नो क्वेश्चन पूछना है, सो आप एनी फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आप टैरो से पूछ सकते हैं। So basically tarot gives the facilitation. Okay. I'll not say ये एक जैसे कुंडली हम दिखाते हैं तो आपके साथ ये होने वाला है, तो लोग ना बहुत डर जाते हैं, इस वजह से ना पूछने नहीं आ पाते कि अरे हमारा फ्यूचर ये बता देंगे, कुछ गलत बता देंगे, हमारे माइंड में बैठ जाएगा, तो हम फिर आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। बट विद टैरो वी गिव द फैसिलिटेशंस, लाइक आपने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा, सपोजिंगली उसका आंसर नो आ रहा है राइट नाउ, So I generally say people right now it's not showing up in your life. अभी उसका टाइम नहीं है, but आप इवेंचुअली उसे कर सकते हैं, मतलब थोड़ा टाइम दीजिए या उसके बाद आप कर सकते हैं, या उस चीज़ के लिए थोड़ा और नॉलेज गेन कर लीजिए, फिर आप कर सकते, तैयारी और कर लीजिए। सो टैरो से हम लोगों को गाइड कर रहे होते हैं। टैरो इज़ फॉर द गाइडिंग एंड द फैसिलिटेशन, कि जो आपका डर है, जो आप करना चाह रहे हैं, तो हम उसे एक रास्ता दिखाते हैं कि हाँ ये हो सकता है, थोड़ी और मेहनत कीजिए, यहाँ ये आने वाला है आपकी लाइफ में, आप ये नहीं कर सकते। सो इज़ बेस्ड टोटली ऑन योर क्वेश्चन। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको कुछ ऐसा बता दूंगी कि आप हो मेरे साथ ही होने वाला, और आप उसके लिए फिर एक डर दिमाग में बैठ जाता है ना। तो हम जनरली कुंडली दिखाने से इसलिए भी डरते हैं कि अरे उसने कुछ ऐसा बता दिया तो मैं वो चीज़ अचीव ही नहीं कर पाऊंगी, कर ही नहीं पाऊंगी। सो विद टैरो वी जस्ट गाइड यू इन दैट जर्नी, कि अभी आप ये नहीं कर सकते तो ठीक है, अभी आप क्या कर सकते हैं उनको पाने के लिए, आप उनकी तैयारियां कीजिए। ओके, तो जैसे कि यूट्यूब में कुछ वीडियोस में कॉमन गाइडेंस होता है अबाउट द सन साइंस एंड एवरीथिंग, तो दैट इट वर्क फॉर एवरीवन। वो कुछ ट्रेट्स होते हैं जो इन जनरल वो बता देते हैं। फॉर मी आई डोंट थिंक दैट गोज राइट, बिकॉज with the sun sign and everything, I am that Cancerian or something, you are a Virgo or somebody is like that. कुछ ट्रेट तो कॉमन होते हैं, हम कॉमन ट्रेट के हिसाब से बता दिए, बट मेरी एनर्जी, मेरी एंटायर थिंग, मेरी प्रॉब्लम सब कुछ डिफरेंट है। तो आई डोंट गो विद दैट जनरल रीडिंग, बिकॉज आई गो विद लाइक उस इंसान की एनर्जी उस समय क्या है, उसके लिए क्या वर्क करेगा क्या नहीं, इट डिपेंड्स टोटली ऑन द पर्सन आस्किंग द क्वेश्चन। सो इन जनरल वाला मैं प्रेफर नहीं करती लोगों को, बस बोल जाता है अरे मेरा ये साल अच्छा जाने वाला, तो एक पॉइंट मैंने आपके मन में डाल दिया, या ये साल आपके लिए, महीना आपके लिए ऐसा जाएगा, तो आप ना उस चीज़ों को मान के ही अपना चीज़ें करने लग जाते हैं। ये पॉइंट ऑफ व्यू मैंने दे दिया, अब उस चीज़ों को अरे मेरे साथ बुरा होने वाला है, मेरे साथ बुरा होने वाला है, मैं अफर्म कर रही हूँ अपने साथ नॉन स्टॉप, पे होने वाला है तो भी हो जाता है। सो अफर्मेशंस क्या होते हैं, हम नॉन स्टॉप अपने आप से रट रहे हैं कुछ चीज़ें, तो क्यों ना हम अच्छी बातें बोले, तो जो हम बोलते जा रहे हैं ना वही होते जा रहा है, वही सिचुएशन क्रिएट होती जाएगी। सो जैसे आपने सुन लिया मेरा दिन बुरा जाएगा,
अरे यार मेरा दिन बुरा जाने वाला है, आपने अपने आप को प्रिपेयर ही करके रख दिया कि मेरा दिन बुरा जाने वाला है। सो इन जनरल रीडिंग पर ना जाएं वो। सो आई सजेस्ट पर्सनल में जाइए, क्योंकि वो आपको रास्ता बताएंगे कैसे निकलना, वो आपको सॉल्यूशन देंगे क्या चीज़ आप कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। और अगर अभी नहीं है तो फिर थोड़े टाइम बाद है, तो आप अभी क्या कर सकते हैं उसके लिए। मैनी टाइम्स वो भी होता है ना, पिक वन कार्ड, 2 Yeah. कार्ड से, तो बट कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है? हाँ, वो तो दोनों का ही बता दे रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इट्स ऑल अ मार्केटिंग गिमिक्स लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। अब वो एक चीज़ भी आपसे कनेक्ट हो गई, आपका दिन अच्छा जाएगा। बेसिकली मैंने आपके अंदर एक सीड डाल दिया, आपका दिन अच्छा गया, तो आप बोलेंगे इसने बोला था, मैं उससे ना और क्वेश्चंस जाके पूछती हूँ। तो काइंड ऑफ अ मार्केटिंग गिमिक है जो लोग डेफिनेटली क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए कर रहे होते हैं। इन जनरल भी मैं बताना चाहूँगी कि हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारे जो थॉट प्रोसेस है, वही हमारी रियलिटी क्रिएट करते हैं। तो अपने आप से जब आप बात कर रहे हैं, बी वेरी मच प्रेजेंट विद दैट। जो आप अपने आप को बोल रहे हैं, दैट इज़ द अफर्मेशंस। दिन भर जब हमसे बात कर रहे हैं, हम अपने आप को समझा रहे हैं, वो ही हमारे अफर्मेशन है। बुरा होगा, सोच लिया है तो बुरा होगा। ये चीज़ ये नज़र, ये जो वहम, ये सारा वैसे ही वर्क करता है। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ये बिल्ली रास्ता काटी है, मेरे साथ बुरा होगा, तो डेफिनेटली होगा। पर अगर मैं इस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया, इग्नोर भी तो मैं ध्यान नहीं देना है, फिर भी मेरा ध्यान वहीं जाए, मैं इस चीज़ को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रही हूँ। एक जानवर है, उसने चल के अपने दूसरा रास्ता चला गया है, दैट इतना सिंपल वो चीज़ है, उसको हम इतना सिंपल ही लेना तो कुछ भी नहीं होगा आपके साथ। तो नज़र का भी यही है, अगर आपको लगता है नज़र होएगी तो हो जाती है। अरे मेरा बच्चा सुंदर है, बाहर गया है, 4 लोगों ने देखा, नज़र लग जाएगी। ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से उसे नज़र लगी है। बेसिकली जितना आप अपने आप को थॉट्स ही ना दें वो सारी चीज़ों के, माने ही ना, तो वो चीज़ें वर्क नहीं करती। ओके, एंड आप अपने लिए भी टैरो यूज़ करते हैं, लाइक समटाइम्स कभी किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फँस गए हो? या डेफिनेटली टैरो भी यूज़ करती हूँ, एंड आई गो फॉर माई काउंसलिंग थिंग्स ऑल्सो, लाइक आस्किंग क्वेश्चंस व्हिच आई टोल्ड यू इनिशियल। तो टैरो में भी हम क्वेश्चंस ही पूछ रहे होते हैं। तो जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको वहीं से क्लैरिटी भी मिलना शुरू हो जाती है। सो या आई यूज़ फॉर माई सेल्फ ऑल्सो समथिंग। ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर गाइडेंस, एंड बहुत सारी चीज़ों के लिए हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा इस एपिसोड के बाद। लाइक हम जो पहले कुछ चीज़ों को सोच रहे थे, उसे देखने का, सोचने का नज़रिया बदल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग एंड मेकिंग अस अंडरस्टैंड न्यू थिंग। Thank you. With this thing also, I would like everybody to be present with yourself, the way you're talking to yourself. ये बहुत important है, आप किस तरीके से अपने आप से बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। अब बस उसमें ही आप ध्यान देने लग गए ना, आप चीज़ें अपने लिए बहुत चेंज कर लेंगे। एंड सेकेंड इज सेल्फ लव। सो डेफिनेटली मैं लोगों को ये अवेयरनेस पहुँचाना चाहती हूँ कि अपना ख्याल रखें, अपने आप से अच्छी बातें करें, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा टाइम अपने आप से स्पेंड कर रहे होते हैं। 24 आवर्स सिर्फ आप हो अपने साथ और कोई नहीं। सो अपना ख्याल रखो और अपने आप से अच्छी बातें करो। That's the only giveaway, this New Year or this Christmas I would like to give to all people right now. थैंक यू सो मच मैम। Thank you.